हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम, हमारा चैप्टर नंबर 2 इंग्लिश का। ठीक है, द गिफ्ट ऑफ चप्पल, उसमें हम दूसरा पार्ट करने वाले हैं। पहला पार्ट हमने पहले ही देख लिया है। चलो देखते हैं आगे। मैंने to create up to window. Lali was sitting a little distance away, quietly holding her violin and boasting her elbow just out and her eyes glazed with concentration. In the front of with the most of his back of the window was bony figure, the music master. He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and old-fashioned turf. A gold chain gleamed around his leathery neck and diamond ring glittered on his hand as glided up and down with the steam of the violin. A large foot stroke of from the beneath his gold border vastly ledge, and he was breathing time on the floor with the carving big toy. He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hand. What a difference! The music master notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheel of the train fitting smoothly into the rails and whistling along, as Ravi said. Meritu started at the huge winged hand, moving effortless up the violin string, making lovely music. Sequence there was Lali's darling again. Amma came a wail from the gate. Amma, oh. Ravi said that beggar away. Cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. He has been coming here every day for the past week, and it's time he found another house to beg from. The Pati explained to Tapi. Manitu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at the home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waiting for the arms to appear go away. Said the Ravi gently, my Pati says it time you found another house to beg from. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at the last, his voice choked with feeling, are very kind soul. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He said he raised his voice. Amma, Amma, oh, said his way, might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in this Vedral's belly and came blooming out of these mouths with its few remaining teeth strained broadly with battle chew. Ravi tell him there's nothing left in the kitchen called Rukumani and he is not to come again. Tell him that. She sounded fed up. Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. The beggar sat up and sighed. I will go, he said wearily. Only let me have a rest here under the tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blitters. He stretched out his feet to show large pink pimples blistered on the sole of his bare feet. I suppose he doesn't have the money to buy chappals. Peridu whispered to Minas Ravi. Have you got an old pair in the house somewhere? I don't, said Ravi. Meena, mine are too small to fit his feet.
or I didn't have given them to him, and his feet were larger than Meridu's and Mina's. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearful at the road glimpsing in the afternoon heat. He needed something on his feet. Mina said, her big eyes falling. It's not fair, said Ravi. I am thinking about it. Rubbing, it's not fair. It is not fair. Isn't going to help. In 2 minutes, he will be frying his feet on the road. What he needs is pair of the temple. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Meridu and Mina into the house. Just as she stepped into the veranda, Meridu's eyes fell on the odd-looking chappal she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered him, and whose are those? Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old sleeper. He beamed and nodded. These are just right size, he said, picking them up. Maridu and Meena follow him nervously back into the garden. ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमने पहले पार्ट में देखा ना कि लाली वो वायरन बजा रही है, ठीक है, एकदम जो उसका आवाज है वो ठीक से आ नहीं रहा है, सब परेशान हो गए थे. तो क्या होता है कि मेरी दूर मीना और रवि है वो तीनों विंडो से झांक रहे हैं कि लाली वो अपना म्यूजिक बजा रही है. तो देखते हैं कि जो इन तीनों के सामने है वो लाली बैठी हुई है और तीनों के नीचे है वो मास्टर बैठे हुए हैं. हम यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि ठीक है, और स्टोरी में हमें जो मास्टर है वो किस तरह से वो दिख रही है. पहले हम बात करते हैं कि लाली है वो किस तरह से बैठी हुई है. तो लाली है उसने अपना पाँव एक स्टैंड पे ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और अपना एल्बो है उसके ऊपर गिटार रखा हुआ है और वो बड़ी डरी हुई है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी नोट से वो म्यूजिक मास्टर की नोट के साथ मिला नहीं रही है इसीलिए. ठीक है, और दूसरी ओर म्यूजिक मास्टर है उसका भी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया गया कि म्यूजिक मास्टर है वो बाल ढेरे, ठीक है, यानी कि उसके बाल है बहुत ही कम है और जितने भी बाल है उसमें ब्लैक कलर है उसका ऑयल लगाया हुआ है. ठीक है, बाल है वो ज्यादा ही ब्लैक दिख रहे हैं. साथ में म्यूजिक मास्टर में गले में एक चैन पहनी है, गोल्ड की चैन है, ठीक है, और हाथ में डायमंड रिंग पहनी हुई है. जैसे ही वो म्यूजिक बजाते ऊपर नीचे वायोलिन का जो हैंडल है वो करते हैं तब क्या होता है कि उसकी जो अंगूठी है, ठीक है, डायमंड की अंगूठी वो और भी ज्यादा चमकती है. और वायोलिन बजाने के साथ साथ वो अपना जो बड़ा सा टॉय है, ठीक है, अपने पाक का पंजा है वो जमीन पे टच करते हैं, ठीक है, यानी कि वो बजाते हैं. और जो म्यूजिक मास्टर है वो जैसे ट्रेन कैसे पटरी पे चलती है एकदम स्मूथली, ठीक है, उस तरह से म्यूजिक नोट बजा रहे हैं. लेकिन जो लाली है, ठीक है, वो ऐसी नोट बजा रही है कि मान लो कि ट्रेन की जो पटरियां है वो कैसे है, ट्रेन है उस पटरियों से नीचे आ गई है, उस तरह की म्यूजिक नोट बजा रही है. ठीक है, और रवि कहता है कि ये शायद कभी नहीं सीख पाएगी इस तरह का. फिर क्या होता है कि अंदर से घर से आवाज आती है. ठीक है, किसकी आवाज आती है? तो हाँ, ठीक है, इन तीनों की मम्मी यानी कि लाली, मीना और रवि की जो मम्मी है कौन है? रुकुमानी. रुकुमानी के अंदर से आवाज आती है. रुकुमानी है वो तभी तापी के साथ बात करती है, ठीक है, जो मेरी दुखी ग्रैंड मदर है उसके साथ बात कर रही होती है, अंदर से आवाज आती है. ठीक है, उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर रहे थे कि उस टाइम पे क्या होता है कि आवाज आती है. उस टाइम पे पहले क्या होता है कि जो गेट है ना, एंट्रेंस गेट, ठीक है, वहां पे एक बेगर है वो आया होता है. ठीक है, और बेगर है वो एक नीम के ट्री होता है ना, नीम का ट्री, उसके नीचे बैठा होता है और जोर से चिल्लाता है ओ अम्मा ऐसा. ठीक है, तो क्या होता है कि मेरीदू है, ठीक है, उसकी जो आंट है मुकू, फिर क्या होता है कि उसको बोलती है कि जो बेगर आया हुआ है ना उसको जल्दी से निकाल दो क्योंकि पिछले 1 वीक से वो हमारे यहाँ आता है. ठीक है, और अब उसको एक नया सा घर ढूंढ लेना चाहिए, ऐसा बोलते. तो तीनों बच्चे वो क्या होता है कि वो बाहर जाते हैं. जो रवि है वो आगे होता है और बाकी मीना और मेरीदू है वो रवि के पीछे पीछे होती है. और रवि कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए. ठीक है, बेगर से वो कहता है, भिखारी से वो कहता है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए. फिर
तो वो भिखारी कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो पिछले एक साल, एक जो वीक से आ रहा हूँ, और यहाँ की जो मालकिन है वो बहुत ही अच्छी है, उसका जो साउल है, ठीक है, वो एक पवित्र आत्मा की तरह है, और ऐसा वो मुझे कभी बोलती ही नहीं। तो अंदर से एक आवाज आती है कि मेरे पति ने मना कर दिया है यहाँ पे आने के लिए, अब तो मेरे पास कुछ देने के लिए भी नहीं है, खाना देने के लिए भी नहीं है, ठीक है। तो रवि ये वापस बोलना नहीं चाहता था, ठीक है, और तीनों तीन है वो भिखारी के सामने देख रहे होते हैं। तो भिखारी क्या करता है, वन बाय वन तीनों बच्चों को देखता है, ठीक है, और क्या होता है कि वो रोड के सामने देखता है, तब देखता है तो वो कहता है कि मुझे थोड़ी देर यहाँ पे आराम करने दो, ठीक है, बाहर इतनी गर्मी है, ठीक है, कि कोई भी हम वायर भी रखेंगे तो वो भी पिघल जाएगा, इतनी गर्मी है, और मेरे पाँव है वो भी जल चुका है, ठीक है। और वो भिखारी है वो अपना पाँव उठा के दिखाता है कि देखो, ठीक है, तो वो जैसे पाँव दिखाता है तो वहां पे क्या होता है, बड़े बड़े पिंपल्स हो गए, ठीक है, वो जल चुके हैं ऐसा दिखाता है। तो मेरी दू कहती है कि नहीं नहीं नहीं, हम इसको ऐसे नहीं जाने दे सकते, तो हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैरिदू रवि से और मीना से पूछते कि क्या तुम्हारे पास कोई ओल्ड पेयर है, ठीक है, ओल्ड पेयर का मतलब क्या, तुम्हारे पास कोई चप्पल से इसको देने के लिए, ठीक है। तो रवि कहता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई ओल्ड पेयर नहीं है, अगर होती तो भी मैं नहीं देता, क्योंकि मेरे जो ओल्ड पेयर है वो इसको फिट नहीं आती, ठीक है। तो वैसे भी जो बेगर है उसके पाँव है वो बहुत ही बड़े थे इसीलिए, और मीना और मैरिदू की भी चप्पल है उसको फिट नहीं आती। तो फिर क्या होता है कि रवि कुछ सोचता है, ठीक है, और रवि क्या करता है कि उन दोनों को अंदर ले जाता है, ठीक है, बरंडा की तरफ आगे ले जाता है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slipper in front of the old man, wearing these and don't come back. The beggar started at the slipper and hurriedly flung his towel over the shoulder and pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of the street. The music master came out the house and took an unappreciative look at three of them sitting quietly under the tree, paying up marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. Lalis, he called. After a few moments, she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. Ravi, Maridu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pot and looked between them. Brand new they were. I went the way to Mount Road to buy them. He went to saying that they cost a whole month's fees. Do you know? Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Pati following her. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many verandas come to the door, worried Pati. Rukumani cast sighed to Ravi, Maridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp, very sharp line had formed between her eyebrows. Another straightened tighter. One appeared in place on her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angrily thought, Maridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sorrow on his feet, and she tried to tell herself. Taking a deep breath, she cried, Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such volleys on his feet. So said Rukumani grimly, turning into Ravi, you gave the music master chappals to the all beggars who turn up here
Children these days, Grandpati. Amma, didn't you tell me about the Karna who gave away everything he had, even his gold earring? He was so kind and generous. Silly, snapped Rukumani. Karna didn't give away other people's things. He only gave away his own. But my champals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed Wesley and Amma, if they did fit, would you really not have minded? Ravi said, Rukumani, very angry now. Go inside this minute. She hurried indoor and brought out Goku Mama's hardly worn new chappal. These should fit you, sir. Please put them on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music master eyes lit. He put them on and trying not to look too happy. Well, I suppose these will have to do. अब क्या होता है कि रवि है वो मीना और मेरिदू को अंदर ले जाता है और जो वरिंडा में मीना जो मेरिदू ने पहले ब्लैक कलर के चप्पल देखे होते हैं वो उठा के भिखारी बैगर उसको दे देता है और बोलता है कि ये लो पहनो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, वापस कभी मत आना। तो भिखारी क्या करता है, वो चप्पल में अपना पाँव डालता है, अपनी धोती को टाइट करता है, अपने जो कंधा है उस पर टुवाल रखता है और वहां से निकल जाता है। और धीरे धीरे ही गली की जो कॉर्नर होती है ना, ठीक है, वहां से वो वेनिश यानी कि गायब हो जाता है। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर में म्यूजिक मास्टर है वो बाहर आता है, ठीक है, और कुछ सर्च करने की कोशिश करता है। तो ये तीनों क्या करते हैं, जो नीम का ट्री था ना जहाँ पे बेगर बैठा हुआ था, वो वहीं पे बैठ जाते हैं और मार्बल से प्ले करते हैं। फिर तीनों देखते हैं कि जो म्यूजिक मास्टर है वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। फिर म्यूजिक मास्टर है वो अंदर से लाली को बुलाते हैं। तो थोड़ी ही मूवमेंट में लाली भी बाहर आ जाती है और लाली है वो पूछती है कि क्या हुआ है म्यूजिक मास्टर। तो म्यूजिक मास्टर बताते हैं कि मैंने थोड़े ही दिन पहले एक चप्पल खरीदे थे जो मैंने एग्जैक्ट यहीं पे उतारे थे, लेकिन अभी वो गायब है और उसकी कॉस्ट कितनी है, तो जो तुम्हारी 1 महीने की फी है ना उतनी उसकी कॉस्ट है। तो लाली पहले तो ढूंढती है सब जगह, लाली और म्यूजिक मास्टर पूरे वरेंडा में ढूंढते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं पे चप्पल मिलती ही नहीं है। फिर क्या होता है कि लाली है वो रुकुमानी को जाके बताती है, ठीक है, लाली अपनी मदर को जाके बताती है। और फिर क्या होता है कि मदर भी बाहर आती है और वो भी चारों ओर ढूंढती है। फिर उसका ध्यान अचानक ये तीनों पे गिरता है कि ये तीनों बच्चे हैं, ठीक है, मेरिदू, रवि और मीना, वो आज एकदम शांत कैसे हो गए हैं, ठीक है, वरना तो जनरली जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है कि वो शोर करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, लेकिन आज वो तीनों शांत है। इसीलिए वो तीनों के पास जाती है और एकदम वी शेप में देखते, वी शेप में मतलब कि गुस्सा होके देखती है, ठीक है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो क्या होता है कि जो मान लो कि हमारा फेस है, ठीक है, तो हमें वी शेप आता है तो हमें ऐसे गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो वो गुस्सा करती है वी शेप में। तभी जो मेरिदू है वो उसको फील होता है कि जो रुकू आंटी है वो मुझे कुछ कहेगी नहीं, ठीक है। तो मेरिदू है वो रो के बताती है कि वो जो पुअर बेगर था ना उसको हमने चप्पल दे दी है क्योंकि उसके पाँव जल रहे थे, इसीलिए हमने उसको चप्पल दे दिए हैं, ठीक है। और रवि भी कहता है कि हाँ मेरे जो चप्पल है उसको फिट नहीं आ रहे थे इसीलिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जो रुकू आंटी वो पूछती है कि क्या तुम्हें दूसरों के भी चप्पल देने चाहिए, ठीक है। तो रवि कहता है कि आपने तो मुझे करना के बारे में बताया था कि करना ने किस तरह से वो एक अच्छा डोनर था, ठीक है, वो अपनी हर चीजें वो दूसरों को दान दे देता था। तो उसी तरह से मैंने भी जो चप्पल थे वो भिखारी को दे दिए, बेगर को दे दिए। तो रुकू आंटी कहती है कि करना है वो सिर्फ अपनी चीजें देता था, दूसरों की चीजें नहीं देता था। तब रवि कहता है कि अगर मेरे चप्पल उसको फिट आ जाते तो मैं उसको दे देता और आपको भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, ठीक है। और क्या होता है कि वो दोनों मान जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है आगे इतनी बहस होती है और रुकू आंटी वो और भी गुस्सा करते और कहते हैं कि जाओ तुम अंदर चले जाओ, ठीक है, जल्दी से अंदर जाओ। और फिर पीछे पीछे वो रुकू आंटी भी बच्चों के साथ अंदर जाती है घर के अंदर। और रुकू आंटी क्या करते हैं, जो गोपू मामा है ना यानी कि मेरिदू के जो अंकल है, ठीक है, उसके जो चप्पल है वो निकाल के म्यूजिक मास्टर को देती है कि ये लो मास्टर, शायद आपको ये फिट आ जाएंगे, ठीक है। तो जो गोपू मामा नए चप्पल लाए थे अपने लिए, वो चप्पल है वो क्या करती है, जो रुकू आंटी है वो म्यूजिक मास्टर को दे देती है। चलो आगे देखते हैं। These days children have no respect for the elders. What to do? Hanuman
incarnate. Only Rama can save such a naughty fellow. Rukumani's eyes flashed. She didn't seem to like a Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straightly by the front door. It was clearly she wanted him to leave quickly. When he had catered off in his new chappal, she said, Maridu came in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappal to work. As he walked towards the kitchen with Maridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he is always in such a hurry to throw off his shoe and shop and get his chappal as soon as he came home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappal to the music master? अब क्या होता है कि जो मेरी दू थी, ठीक है, वो भी उसने अपनी सारी की सारी बातें कर दी थी, ठीक है, तो वो क्या होती है कि जो रुको आंटी होती है ना, वो म्यूजिक मास्टर को नया चप्पल दे देती है। तो म्यूजिक मास्टर भी कहता है कि हाँ हाँ सही बात है, आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही शैतान हो चुके हैं और उसको एल्डर की जरा भी परवाह नहीं होती, एल्डर्स की कोई भी बात मानते नहीं है, ठीक है, ये सारी बातें करते हैं। फिर क्या होता है कि जो रुकू आंटी होती है ये नहीं चाहती है कि वो जो मास्टर है वो ज्यादा देर तक यहाँ पे खड़ा रहे, ठीक है, और जल्दी से वो चला जाए। तो जो मास्टर है वो कहता है कि हाँ हाँ आपका बच्चा तो है, वो रवि है, वो एकदम हनुमान की तरह है, ठीक है। तो रुकू है वो ये नहीं चाहती थी कि उसका जो रवि है उसका बेटा वो उसको कोई बंदर कहे, ठीक है, यानी कि भले ही वो पवित्र बंदर हो फिर भी वो नहीं चाहती थी कि उसको कोई बंदर कहे, और जल्दी से वो डर के पास चली गई ताकि वो मास्टर है वो चला जाए। फिर क्या होता है कि मेरी दू है वो भी आंटी के साथ अंदर जाती है और वो भी टिफिन बनाने में मदद करती है, ठीक है। तो आंटी कहती है कि अच्छा हुआ ना कि जो तुम्हारे गोपू मामा है, ठीक है, वो चप्पल से वो अभी पहनते हैं नहीं है, ठीक है, वो काम पे जाते तब वो ये चप्पल पहनते नहीं, इसीलिए ये चप्पल से मैंने वो मास्टर को दे दिए। फिर क्या होता है, मीरा और मरीदू है वो दोनों ही साइलेंटली लाफ करने लगते हैं, ठीक है, और आंटी है जो, ठीक है, रुकू आंटी वो पूछती है कि जब तुम्हारे मामा है वो घर पे आएंगे तब मैं क्या करूंगी उससे कि ये चप्पल है मैंने जो म्यूजिक मास्टर ने उसको दे दिए तो मैंने क्यों दे दिए, ठीक है, उसका आंसर मैं कैसे लाऊंगी। और यहाँ पे हमारा स्टोरी है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, हम कॉम्प्रिहेंशन एक बार फटाफट कर लेते हैं। द म्यूजिक, उसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। पहला, म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग lovely music. Read loudly the sentence in the text that express this idea. तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा, म्यूजिक मास्टर्स नॉट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द रीजनेबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी, ठीक है। म्यूजिक मास्टर की जो नोट थी वो किस तरह की थी, तो म्यूजिक मास्टर की नोट इस तरह से थी जैसे कि वो मेलोडी म्यूजिक बजा रहे हो। देखते हैं दूसरा, had the beggar come to Rukumani's house for the first time, give reason फॉर योर आंसर, ठीक है। क्या होता है कि जो बेगर है वो रुकुमानी के हाउस में आ गया था फर्स्ट टाइम, तो वो क्यों आया था वो आपको अपनी तरफ से लिखना है। नो बेगर हैज बीन कमिंग टू रुकुमानी's हाउस फॉर लास्ट 1 week. द बेगर हिमसेल्फ confirmed this saying that he has survived for a week because of the रुकुमानी's kindness. अब क्या होता है कि नहीं, जो बेगर है वो रुकुमानी's के घर पे आया हुआ नहीं था, ठीक है, क्योंकि बेगर ने ये कहा था कि वो लास्ट वीक में ही एक ही दिन सिर्फ रुकुमानी's के घर पे आया हुआ था और रुकुमानी's की काइंडनेस की वजह से ही वो अभी तक सरवाइव कर रहा है। चलो देखते हैं थर्ड वन, अ शार्प वी शेप लाइन हेड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रो, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू टू अबाउट रुकुमानी's मूड, ठीक है। जो वी शेप में लाइन थी तो वो रुकुमानी's का कौन सा मूड बता रही थी। V-shaped line suggested that Rukumanis was very angry and was about to lose her temper on the children. अब क्या होता है कि जो V-shape आई थी वो ये बता रही थी कि रुकुमानी है वो बहुत ही एंग्री है और उसने अपना जो टेम्पर है, ठीक है, उसने अपनी शांति भी खो दी है। चलो देखते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको ये सारे सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। पहला है, रवि कंपेयर लालीज प्लेइंग द वायलिन टू ड्रिलिंग ऑफ अ ट्रेन गोइंग ऑफ ट्रैक, ठीक है। दूसरा है, ट्राइंग टू हाइड ब्रिनेक द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रा ट्रिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, ठीक है। तीसरा है,
The teacher play a few notes on his violin and Lali stumble behind him on her violin. तो ये सारे सेंटेंस है, ठीक है, वो आपको यूनिट में से ही मिल जाएंगे. देखते हैं फोर्थ वन. The beggar said that the kind lady of the household have been very generous and helped him survive for a week. देखते हैं फिफ्थ वन. After the lesson was over, the music teacher asked Lali if she had seen his chappals. देखते हैं नंबर 2 वाला क्वेश्चन. डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो. आपको म्यूजिक टीचर के बारे में लिखना है जिससे आपको विंडो में दिखते हैं उस तरह से, ठीक है. चलो देखते हैं कुछ आंसर इस तरह से बनेगा. म्यूजिक टीचर वाज अ bony figure. He was sitting in front of the Lali with his back toward the window. He was bald-headed man with a finger, oil hair falling around his ear. He had an old-fashioned strap. He had a shining gold chain in his neck and had a diamond ring on his hand. He was wearing a golden border dhoti. His large float was stuck on the floor and he was beating the floor with his स्क्रेवी टॉय. अब क्या होता है कि म्यूजिक मास्टर के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है जिसे आपको पीछे से दिखता है. तो मैंने आपको बताया था कि म्यूजिक मास्टर है, उसका जो हेयर है वो बाल हेयर है, पीछे से बोनी बंधी हुई है, ठीक है, ऑयल भी डाला हुआ है और कान तक पहुंच रहा है. और क्या है, गले में चैन पहनी है गोल्ड की, हाथ में अंगूठी है डायमंड की, ठीक है. और क्या होता है कि एक हाथ में वायोलिन है और बहुत ही मेलोडी फॉर्म में बजाते हैं और अपना जो पाँव का टॉय है वो भी जमीन में गिराते हैं. ये देखा था हमने. चलो देखते हैं थर्ड वन. What makes Meridu conclude that the beggar has no money to buy chappals? Meridu ये conclude पे क्यों पहुंच गए, ठीक है, अंतिम में क्यों पहुंच गए कि beggar के पास कुछ मनी नहीं होगी चप्पल्स के लेने के लिए. Beggar saw his feet to the children. There were pink blisters on his bare feet which made Meridu conclude that. अब क्या होता है कि जो beggar है उसने अपने पाँव उठाए थे, ठीक है, और उसमें अपने पिंक ब्लिस्टर है, ठीक है, अपने जो छाले है वो बताए हुए थे. चलो देखते हैं थर्ड में 2. What does she suggested to show her conquer? ठीक है, चलो देखते हैं उसका आंसर किस तरह से होगा. Meredy was conquered about the beggar. She suggested give an old pair of the chappals to the beggar. अब क्या होता है कि मेरिडू है उसका इलाज किस तरह से करती है, जो पिंक ब्लिस्टर पड़ गए थे उसका इलाज कैसे. तो मेरिडू ये सोचती है कि क्यों ना हम इसको ये चप्पल्स दे दे. चलो देखते हैं फोर्थ में फर्स्ट वाला. हैव यू चिल्ड्रन सी बैगन एंड देन सीइंग दे वेर करियर्स क्वाइट वेंट नो मोर स्लोली सीन एनीवन लर्किंग अबाउट द वरेंडा. नंबर 1. व्हाट डू यू थिंक रुकुमानी रियली वांटेड टू आस्क. ठीक है, रुकुमानी क्या पूछना चाहती थी एक्चुअली में. रुकुमानी वांटेड टू आस्क द चिल्ड्रन व्हाट दे हैव डन विद द चप्पल्स. रुकुमानी ये पूछना चाहती थी कि उसने ये चप्पल के साथ क्या किया है. चलो देखते हैं नंबर 2. व्हाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन. उसने अपना क्वेश्चन क्यों बदल दिया. सी चेंज द क्वेश्चन फाइंडिंग द चिल्ड्रन सीरियसली एंड क्वाइट. सी बिकम श्योर दैट द चिल्ड्रन हैज समथिंग टू डू विद द चप्पल्स. क्योंकि बच्चे हैं वो एकदम शांत थे और एकदम सीरियस थे, इसीलिए उसने सोचा कि बच्चों ने कुछ चप्पल के साथ किया होगा. चलो देखते हैं थर्ड वन. व्हाट डिड सी थिंक हैड हैपन. उसने क्या सोचा. सी थॉट दैट द चिल्ड्रन वुड हैव हाइड द चप्पल समवेयर. तो उसने ये सोचा था कि चिल्ड्रन ने अपने जो चप्पल है मास्टर जी के चप्पल वो कहीं पे छुपाए होंगे. चलो देखते हैं फिफ्थ वन. ऑन गेटिंग गोपू मामा's चप्पल द म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट टू लुक टू हैप्पी. वाई. ठीक है, जो गोपू मामा के चप्पल को लेके म्यूजिक मास्टर क्यों हैप्पी नहीं थे. वाई. Music teacher chappals were all but he lied to Lali saying that they were branded new Gopu Mama's had hardly use his new chappal. अब क्या हुआ था कि जैसे म्यूजिक टीचर ने बताया था कि उसने अपनी सैलरी से चप्पल लिए हुए हैं और साथ साथ क्या था कि उसने जो चप्पल है वो बहुत ज्यादा पहने भी नहीं थे और गोपू मामा के चप्पल भी कुछ इसी तरह के थे. चलो देखते हैं नंबर 6 1. On getting a gift of the chappal, the beggar vanished in the minute. Why was he in such a hurry to leave? ठीक है, जब भी बेगर को चप्पल मिल गए तो वो वहां से वेनिश हो गया, गायब हो गया. ऐसा क्यों हुआ था. ठीक है, चलो देखते हैं आगे. The beggar was in a hurry to leave after the getting the chappal because he knew that the children have to got them for him without the seeking the permission of the elders. He feared that the might to be taken back from him, so he left the hurry.
अब क्या होता है कि उस बैगर को पता था कि ये बच्चे वो चप्पल बिना किसी बड़ों के पूछे वो लाके दे दिए है, ठीक है। अगर किसी को पता चला तो वो वापस वो चप्पल ले लेंगे, इसीलिए बेगर है वो जल्दी से वहां से निकल गया। वॉकिंग टुवर्ड द किचन विद द मेरिडू एंड मीना, रुकुमानी बेगन टू लाफ। व्हाट मेड हर लाफ, ठीक है। जब मेरिडू है और मीना है वो रुकू आंटी के साथ आए तो वो रुकू आंटी क्यों हंसने लगी, रुकुमानी वॉज लाफ इमेजिंग गोकू मामास विदाउट हिज चप्पल्स। He had habit of taking out his shoes immediately after the coming home and putting on those chappals. She laughed, wondering what the executive would she give him and what would be the reaction. अब क्या होगा कि रुकुमानी ये जान के हंस रही थी कि जो उसके मामा है गोकू मामा, ठीक है, क्या है कि वो जब काम से लौटेंगे, ठीक है, तो वो बता देंगे कि उसके चप्पल है वो उसको मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दी। तब मैं उसका रिएक्शन और वो क्या मुझे कहेंगे उसी के बारे में सोच के वो हंस रही थी। चलो देखते हैं वर्किंग विद द लैंग्वेज में। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ये सारे सेंटेंस है वो रीड करने हैं। नीचे कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, ठीक है, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूं। डोंट टायर योरसेल्फ नाउ, यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। अब क्या होता है आपको उसमें इफ वाला सेंटेंस बनाने हैं, तो मैं उसका सेंटेंस बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आप लिख सकते हो तो लिख लेना। इफ यू टायर योरसेल्फ नाउ यू वांट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। चलो दूसरा देख लेते हैं, आंसर बोल रहा हूं मैं सीधा। इफ यू स्टडिंग रेगुलरली यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन। थर्ड वन देख लेते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। कुछ इस तरह से आंसर बनेगा। तो आप बाकी के जो दोनों है, बी पोलाइट टू बी पीपल दे विल ऑल्सो अबेल टू पोलाइट यू, और डोंट टीयर द डॉग इट विल बाइट यू। तो ये दोनों आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। बाकी तो मैं पीडीएफ में भेजने वाला ही हूँ। अब बात है ब्लैंक्स की, फिलिंग द ब्लैंक्स में पहले में गो का गो ही आएगा, ठीक है। फिर मिस है तो वहां पे हमें लिखना है विल मिस। क्या आएगा, विल मिस, ठीक है। थर्ड में आएगा स्टे। क्या आएगा, स्टे, सिर्फ स्टे, STAY, ओके। और वापस आएगा विल मिस, ओके। चलो देखते हैं थर्ड वन, कंप्लीट ईच सेंटेंस। तो आपको ये सेंटेंस नीचे के कंप्लीट करना है। तो पहला लिखा है डोंट गो टू द थिएटर इफ यू डोंट वांट टू। तो पहले में क्या आएगा, पहले में आएगा ये इफ यू डोंट वांट टू, ठीक है, ये आएगा। फिर दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में ही विल पोस्ट योर लेटर इफ यू वांट टू हिम, तो इसमें ये आएगा, ठीक है, पहला दूसरा। फिर इफ यू वांट टू तो वापस इसमें आएगा 3 वाला, ठीक है। प्लीज यूज माई पेन, तो इफ यू वांट टू। फोर्थ वन में क्या आएगा, फोर्थ वन में आएगा इफ यू वांट टू हिम, ये भी फोर्थ वन में आएगा। फिर फिफ्थ वन में क्या आएगा, तो फिफ्थ वन में आएगा विल टेक यू टू द डॉक्टर इफ यू वांट टू हिम, ठीक है। क्या आएगा, यू वांट टू हिम, यानी कि ये भी फिफ्थ वन आया। सिक्स वन में क्या आएगा, सही है, आप सही बोल रहे हो, डोंट ईट इट इफ यू डोंट वांट टू ईट। सिक्स वन में आएगा दूसरा वाला, ओके। बाकी क्या स्पीकिंग है, ठीक है, वो एक बार अच्छी तरह से देख लेना, रीड कर लेना, उसमें कुछ एक्टिविटीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट है वो कंप्लीट होता है, ओके। थैंक यू।